जो हम अब अपना काम स्टार्ट करते हैं इस तरह से। जनरल अयूब खान, today's topic is its time of rule is 1958 to 69. Or first of all, I want to give you an introduction of General Ayub Khan, right? General Ayub Khan born in Northwest Frontier Province, or he got education from Aligarh College. He got commissioned in Army, British Army in 1928, and he also fought against the Japanese in Burma in World War II. He became the first Pakistani commander-in-chief in 1951 and first chief martial law administrator on 7th October 1958. After passing 20 days, yani on 27th October 1958, he became the president of Pakistan as well. So he had two offices at a time, yani he was chief martial law administrator and president of Pakistan as well. अच्छा, अब हम जो बात करेंगे यानी अयूब खान की रिफॉर्म्स के बारे में बात करने से पहले फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स ही फेस्ड ड्यूरिंग हिज टेन्योर, और जो उनको सबसे ज्यादा उनकी गवर्नमेंट को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी वो प्रॉब्लम नंबर 1 जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, यानी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. Because we all know that first 10 years, yani 1947 to 57, in Pakistan's political history is quite challenging for the government. And due to the political instability and mismanagement, 7 governments had changed after one and other. So it means that frequent changes of government led towards the economic crisis, which is problem number 2, economic crisis. So when we can see that the economic crisis deals with different types of problem like lack of consumer goods or rising prices or shortage of food, smuggling, black marketing, such type of problems government was facing at that time. Then we can see that the problem number 3, which is political immaturity. Actually, the political immaturity and corruption among the politicians proved that army is the most organized and disciplined institution. So the role to maintenance of law, we required a very disciplined organization. So this general perception led towards the imposition of martial law as well. So when we talk about the reasons of imposition of martial law, we can also consider these problems as well, which we have discussed earlier. यहाँ पे जो मैंने पहले आपसे बात की, यानी problem number 1, political instability or economic crisis or political immaturity. So बेटा यहाँ एक और चीज भी मैं आपको बता दूं कि when you will find a question like explain the reasons of imposition of martial law, तो आप इन प्रॉब्लम्स को जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, you can also add these problems as a reasons of imposition of martial law. इसके अलावा और जो रीजन है मार्शल लॉ की, वो एक्सटर्नल रीजन भी इसके अंदर शामिल होती हैं, बिकॉज इससे पहले तो हमने इंटरनल रीजंस के बारे में बात की है. जो एक्सटर्नल रीजन है उसको हम कहते हैं मिलिट्री टेक ओवर्स इन अदर इस्लामिक कंट्रीज. यानी ड्यूरिंग दिस एरा, यानी 47 टू 58 टाइम पीरियड, यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज लाइक इजिप्ट, इराक, बर्मा, दे हैव आल्सो faced military coup in their countries, and military rule was very successful in those countries. So that is why Pakistan army also started to think that eventually we will lead towards the clean up the mess created by the politician. It means that they were thinking about the imposition of martial law, or this idea was encouraged by the President Iskandar Mirza as well, because he abrogated the Constitution 1956 and dissolved the legislatures. He also banned the political parties as well. So in this way,
he imposed martial law on 7th October 1958. अब जाहिर है उस वक्त कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी थे वो जनरल अयूब खान थे। कमांडर इन चीफ का ये ऑफिस जो है प्रेजेंटली इसको अब हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहते हैं। तो इन दिनों जो कि अयूब खान कमांडर इन चीफ थे तो ही बिकेम द फर्स्ट चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। सो इस तरह से हम देखते हैं कि पाकिस्तान में फर्स्ट मार्शल लॉ जो है वो 7 अक्टूबर 1958 को इम्पोज हुआ और एग्जैक्टली 20 डेज गुजरने के बाद 27 अक्टूबर को अयूब खान फोर्स प्रेसिडेंट मिर्जा टू रिजाइन और जिसकी के बाद ही टुक द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एज वेल। सो अभी तक जो हमने बात की है यानी रिवाइज किया है वो हमने किए हैं अर्ली यानी बायोग्राफी ऑफ अयूब खान और इसके साथ साथ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द गवर्नमेंट और along with the reasons of imposition of martial law। अब जो हम बात करते हैं अयूब खान के टेन्योर की, बिकॉज अयूब खान टेन्योर जो है उसको हम देखते हैं कि हाउ ही कंट्रोल दीज प्रॉब्लम्स। उसमें एक इम्पॉर्टेंट जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है उसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज ही वांटेड टू रन द गवर्नमेंट इफेक्टिवली और इस आइडिया को सपोर्ट करने के लिए ही imposed elective bodies disqualification order यानी जिसको एब्डो कहा जाता है। बेसिकली इस ऑर्डर का पर्पस क्या था? इस ऑर्डर का पर्पस बेसिकली अयूब खान नंबर 1 तो करप्शन को कंट्रोल करना चाहते थे लेकिन साथ ही साथ वो अपने ओपोनेंट को काउंटर भी करना चाहते थे। इसीलिए हम ये देखते हैं कि इस ऑर्डर के थ्रू उन्होंने इस चीज को कंट्रोल किस तरह से किया कि इफ एनीवन एक्यूज्ड ऑफ करप्शन और इम्प्रॉपर बिहेवियर then improper behavior could choose between either a trial or retirement from public life or public office। So इस तरह से इस 7,000 people जो हैं वो through एब्डो उन्होंने evict किए और इस तरीके से यानी इस ऑर्डर के थ्रू ही effectively eliminated many important figures who might have challenged अयूब खान्स रूल। सो इस ऑर्डर के थ्रू उनको 2 बेनिफिट्स मिले, एक तो करप्शन को कंट्रोल करने का और दूसरा ओपोनेंट्स को अपने जो प्रोमिनेंट ओपोनेंट्स थे उनको काउंटर करने का। और ये बहुत जरूरी था उस वक्त क्योंकि वो चाहते थे कि अपनी गवर्नमेंट को इफेक्टिवली रन कर सकें। लेकिन इस ऑर्डर की वजह से उनको जो जनरल परसेप्शन लोगों की तरफ से उनको मिली वो ये थी कि जाहिर है कि दे डिसलाइक जनरल अयूब खान सीज ऑफ पावर बट दे वर पावरलेस एंड दे कांट डू एनीथिंग। मगर अयूब खान को जब ये फीडबैक मिली तो उनका बेसिक पर्पस क्या था? उनका बेसिक पर्पस ये भी था कि जो कॉमन पाकिस्तानीज हैं उनको सेटिस्फाई किया जाए। सो दैट इज व्हाई ही इंट्रोड्यूस रेडिकल रिफॉर्म्स और इन रिफॉर्म्स की वजह ही से जो उनका टाइम पीरियड है वो डेकेड ऑफ डेवलपमेंट के नाम से ज्यादा जाना जाता है। लेकिन जब हम उनके रूल की बात करते हैं तो इसका मतलब उनका डेकेड ऑफ डेवलपमेंट जो है वो बेसिकली उनकी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स और सोशल रिफॉर्म्स पर बेस करता है। So we will go through the economic reforms first and as well as we have to analyze these reforms as well कि why we call it a decade of development with the reference of these reforms। So अगर बेटा आपको 14 नंबर जो क्वेश्चन आता है वो मोस्टली इन रिफॉर्म्स से का रिव्यू होता है, तो अगर आप इस तरह से उसको मतलब इसको इस तरीके से मैं आपको रिवाइज इसीलिए करवा रही हूँ ताकि आप हर तरह के क्वेश्चन हैं उनको अटेम्प्ट कर सकें, यानी 4 नंबर या 14 नंबर क्वेश्चन। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमें नजर आती है कि ही स्टार्टेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और फॉर दिस पर्पस ही हायर्ड
trained economists, ताकि अच्छी प्लानिंग हो सके और अच्छी प्लानिंग के अकॉर्डिंगली जो इम्प्लीमेंटेशन हो वो बेहतर तरीके से हो, and he can achieve his objectives as well. For this purpose, he offered several incentives to the private sectors, और इन इंसेंटिव्स के अंदर शामिल था टैक्स, जो उनकी टैक्स हॉलीडेज भी हैं, कंसेशन इन टैक्स, एज वेल एज एक्सपोर्ट बोनस स्कीम। और इसी की वजह से हम ये देखते हैं कि these steps attracted a great number of industrialists and the large scale manufacturing industry as well. और इसका जब हम इम्पैक्ट को इसके एनालाइज करते हैं तो हम ये देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट ग्रू एट एन एनुअल एवरेज रेट ऑफ अराउंड 11.5%. और ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड पीपल इनकम वेंट अप बाय एन एवरेज ऑफ 14%. As a result, Pakistan achieved a high economic growth rate of 7%, which that was thrice that was thrice of India. यानी एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर यहाँ पर क्लियरली इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है इनके टाइम पीरियड के अंदर हमें नजर आती है। अब अयूब खान की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट ये भी है कि ही इंट्रोड्यूस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन बेस्ड ऑन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। For this purpose, he developed the agricultural sector as well, and he introduced the green revolution in Pakistan. अब अगर हम देखें कि what is green revolution, तो इसमें हमें नजर आता है कि he introduced mechanization in agricultural sector, जैसे कि use of tractors, threshers, combined harvesters, as well as use of HYVs, chemical fertilizer, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स। और इन सब का मकसद जो है वो क्या था कि हम अपना एग्रीकल्चरल आउटपुट जो है उसको मैक्सिमाइज करें, उसको इंक्रीज करें, जिसमें काफी हद तक वो कामयाब भी हुए। उसके बाद हम देखते हैं कि इसी के अंदर एक और इम्पोर्टेंट अचीवमेंट जो है वो है कि ही साइंड इंडस वाटर ट्रीटी इन 1960। अब इंडस वाटर ट्रीटी जो बेसिकली है वो कैनाल वाटर डिस्प्यूट जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान चल रहा था, इसको सॉल्व किया गया थ्रू दिस ट्रीटी। और इससे पाकिस्तान की एग्रीकल्चर के साथ साथ पावर सेक्टर को भी बहुत फायदा हुआ, बिकॉज वी बिल्ट 2 लार्ज डैम्स, यानी मंगला डैम और तरबेला डैम। और इसके साथ साथ ही वी डेवलप अ वास्ट नेटवर्क ऑफ कैनाल इरिगेशन। सो हम ये देखते हैं कि टिल प्रेजेंट हमको इसकी वजह से, यानी इस ट्रीटी की वजह से बहुत फायदा हो रहा है, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी है और पावर प्रोडक्शन के अंदर भी है। तो हमें अभी तक ये दोनों प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। सो नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो है हमारी सोशल रिफॉर्म्स। Social reforms, again, in social sector, he wanted to uplift the status of people, common people. So that is why he started to give basic health facilities to the people of Pakistan. For this purpose, he set up new medical colleges and hospitals. इसके साथ ही साथ जो एक रेडिकल अटेम्प्ट थी सोशल सेक्टर के अंदर वो ये भी थी कि फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान ही स्टार्टेड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम टू कंट्रोल द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। क्योंकि उस वक्त जो ये प्लान था, ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, दिस वाज फर्स्ट टाइम, तो इसकी वजह से ही फेस्ड अ लॉट ऑफ ऑपोजिशन फ्रॉम द रिलीजियस leaders from in Pakistan. लेकिन because due to authoritarian attitude he controlled this opposition। और इसका हमें बाद में, यानी after passing 10 years, यानी भुट्टो के टाइम पीरियड के अंदर हमें इसके पॉजिटिव जो नजर आने शुरू हुए रिजल्ट, क्योंकि इसकी वजह से हमने अपना जो बहुत तेजी से ग्रोथ रेट बढ़ रहा था उसको कंट्रोल कर लिया। इसके साथ ही साथ एजुकेशनल सेक्टर के अंदर ही also introduced polytechnic institutions। अब ये polytechnic institutions जो है बेसिकली ये इन इंस्टीट्यूशन का मकसद लोगों के अंदर स्किल एजुकेशन को प्रमोट करना था, और इसका ऑब्जेक्टिव ये था ताकि हम
we can prepare a trained industrial workforce, जो कि बहुत जरूरी था, यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, ताकि हम एक क्वालिटी प्रोडक्ट जो है उसको प्रोड्यूस कर सकें। इसके साथ ही हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की भी बात करनी है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें नजर आता है, सबसे पहले अयूब खान इशूड बेसिक डेमोक्रेसीज ऑर्डर। अब बेसिक डेमोक्रेसीज ऑर्डर जो है वो क्या ऑर्डर है, इस बेसिकली इस सिस्टम के थ्रू उन्होंने ग्रास रूट लेवल से लीडरशिप को डेवलप करने की कोशिश की। और दिस सिस्टम जो है, दिस सिस्टम वाज बेस्ड ऑन 4 tier सिस्टम। ये 4 लेवल्स के में डिवाइड किया गया, जो कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है उसके अकॉर्डिंगली, यानी लेवल नंबर 1 में यूनियन काउंसिल जो कि रूरल एरियाज को रिप्रेजेंट कर रही थी, एंड टाउन कमेटीज विच वाज रिप्रेजेंटिंग द अर्बन एरियाज। नंबर 2 के ऊपर आती हैं थाना काउंसिल्स। थाना काउंसिल्स जो है, थाना की टर्म जो है वो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर यूज होती थी, दैट इज अ रीजनल टर्म, जबकि इसको रिप्लेस कर रही थी, इस टर्म को रिप्लेस तहसील काउंसिल इन वेस्ट पाकिस्तान। यानी अभी भी प्रेजेंटली भी आप देखते हैं कि हमारा ये तहसील जो है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। नंबर 3 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, एंड नंबर 4 जो है वो है डिविजनल काउंसिल। सो इस तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंटेशन जो है वो 4 लेवल के थ्रू जो है वो बिल्डअप की, और इसको आगे फर्दर यहाँ से जो लोग इलेक्ट हुए उनको बेसिक इलेक्टोरेट्स का, बेसिक डेमोक्रेट्स का नाम दिया गया। इनकी जो नंबर था वो टोटल 80,000 जो बेसिक डेमोक्रेट्स थे वो इलेक्ट हुए, और इनको डिवाइड किया गया इक्वली ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान में, यानी ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बोथ विंग्स हैव 40,000 basic democrats, and these democrats constituted the electoral college for the election of president and the members of national and 2 provincial assemblies. We will talk about the 1962 constitution as well. This constitution had presidential form of government. So first we will talk about the powers of president. जब हम प्रेसिडेंट की पावर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले जो प्रेसिडेंट की पावर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे वो है कि he could not removed until impeached. अब what does impeach mean? It means to charge with a crime or misconduct. Number 2 is nominated the cabinet from the members of the National Assembly, यानी he nominated the cabinet, जो कि नेशनल असेंबली के मेंबर्स भी होंगे. He also nominated the heads of judiciary and provincial governors. इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि he also pass any law, he can pass any law and reject laws suggested by National Assembly. लेकिन रिस्ट्रिक्शंस के अंदर हम ये चीज देखते हैं कि प्रेसिडेंट जो है he can elect only through electoral college, यानी बेसिक डेमोक्रेट्स जो हैं they can elect the president. ये उसकी बेसिक जो है वो प्रीरेक्विजिशन के अंदर शामिल है. फिर हम बात करते हैं नेशनल असेंबली की. सो अकॉर्डिंग टू दिस constitution which have presidential form of government, there was a single house, और सिंगल हाउस जो है वो नेशनल असेंबली है. अभी अगर हम प्रेजेंट डे के अंदर देखें तो वी हैव 2 हाउसेस ना, एक तो सेनेट होता है और दूसरा लोअर हाउस, एक अपर हाउस सेनेट है और लोअर हाउस जो है वो हमारी नेशनल असेंबली है. लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन देयर वाज ओनली अ सिंगल हाउस व्हिच वाज इलेक्टेड फॉर 5 years, और इसको इलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबल अगेन इलेक्टोरल कॉलेज है जो कि बेसिक डेमोक्रेट्स हैं. Provincial assembly again elected for 5 years, and these assemblies were also elected by the electoral college. अब यहाँ पर एक और चीज जो हम ने ऐड की है वो है
powers of both assemblies. Both assemblies का मतलब जो हमारी यहाँ पे national assembly है या provincial assemblies है, they can suggest legislation and administer it. यानी they will make laws, सजेस्ट करेंगी, सॉरी मेक तो नहीं करेंगी, वो लॉ को सजेस्ट करेंगी, क्योंकि लेजिस्लेचर जो है वो अलहदा होगी जिसके अंदर एक्सपर्ट लॉ मेकिंग के एक्सपर्ट होंगे. सो ही विल सजेस्ट लेजिस्लेशन और इसके साथ साथ इम्प्लीमेंट इट एज वेल. यहाँ रिस्ट्रिक्शन जो आती है, यानी वो रिस्ट्रिक्ट हैं, यानी प्रेसिडेंट मस्ट एग्री टू लेजिस्लेशंस. ये बहुत जरूरी था कि प्रेसिडेंट जो है वो उससे एग्री करें, यानी विदाउट द एग्रीमेंट ऑफ प्रेसिडेंट वी कैन मेक एनी लॉ और पास एनी लॉ. लास्ट जो इसकी क्लॉज है उसके अंदर ये है कि बोथ उर्दू एंड बंगाली डिक्लेयर्ड एज टू ऑफ द नेशनल लैंग्वेज. सो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दोनों लैंग्वेजेस को, यानी उर्दू और बंगाली को नेशनल लैंग्वेज बनाया गया, क्योंकि आपको पता है इससे पहले जो है वो लैंग्वेज कंट्रोवर्सी चल रही थी. इसकी वजह से ईस्ट और वेस्ट के दरमियान जो रिफ्ट थी उनको उस तरह से उन्होंने इस टाइम पीरियड के अंदर ऐसे सॉल्व किया कि बोथ लैंग्वेजेस वर डिक्लेयर्ड एज नेशनल लैंग्वेज. सो अभी तक जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया वो है बायोग्राफी, देन प्रॉब्लम्स, आफ्टर दैट रीजंस ऑफ इम्पोजिशन ऑफ मार्शल लॉ, then reforms, yani economic reforms, agricultural reforms, social reforms, and constitutional reforms. So now I'm discussing with you reasons of Ayub Khan's loss of power. इसका मतलब यहाँ पर हम वो फैक्टर्स देखेंगे कि किस वजह से अयूब खान लेफ्ट हिज ऑफिस. यहाँ पे सबसे पहली जो चीज हमें नजर आती है वो authoritarian nature of his regime, because Ayub Khan was commander in chief of army. तो हमें ये जरूर नजर देखना चाहिए कि definitely he must have different attitude as compared to the politicians. So उनकी जो रूल ऑफ यानी स्टाइल ऑफ रूल है वो भी इट्स क्वाइट अथॉरिटेरियन, और इसकी वजह से ही फेस पॉलिटिकल ऑपोजिशन across the country, and political parties also joined hands against Ayub Khan. और यही जो उनका हमें alliance नजर आता है वो 1964 के presidential elections के अंदर नजर आता है कि he made alliances, यानी all political parties made an alliance which was known as combined opposition parties, यानी COP, combined opposition parties, under Fatima Jinnah. क्योंकि फातिमा जिन्ना जो है उन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के अंदर जो है उनकी जो ओपोनेंट थी वो अयूब खान की ओपोनेंट वो फातिमा जिन्ना थी. और यहाँ इस इलेक्शन के अंदर जो रिगिंग के चार्जेस थे उसकी वजह से ये अलायंसेस जो हैं अयूब खान की गवर्नमेंट के अगेंस्ट बने. फिर इसके साथ ही हम थर्ड फैक्टर के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, yani although we know that his economic reforms boosted the industrial activity and raised overall economic growth, लेकिन इसके साथ ही साथ लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया था कि there is a concentration of wealth only in 22 families. और जो फिगर्स हैं वो भी इस बात को प्रूव करते थे, यानी ये इस चार्ज को प्रूव करते थे, बिकॉज 80% ऑफ द बैंकिंग, 90% ऑफ द इंश्योरेंस कैपिटल एंड ओवर 60% ऑफ द एंटायर इंडस्ट्रियल कैपिटल वाज इन द हैंड्स ऑफ ओनली 22 फैमिलीज. तो ये जो उनका चार्ज था ये भी एक्चुअली जो है वो क्लियर नजर आ रहा था, जिसकी वजह से लोग उनके अगेंस्ट हो गए. इसके बाद नंबर 4 जो रीजन हमारे सामने नजर आती है वो है कि ही बैंड लेबर यूनियंस, जिसकी वजह से लेबरर्स फील दैट देयर राइट्स आर वायलेटेड, और this had generated unrest among the urban workers as well. इसके साथ ही साथ टाइम गुजरने के साथ the number of educated yet jobless youth had been able to create adequate number of employment opportunities. और
और इसने जो है इस रिजेंटमेंट जो लेबर क्लास के अंदर रिजेंटमेंट थी उसने बहुत ज्यादा गवर्नमेंट को डिस्टर्ब किया, क्योंकि जेड भुट्टो लॉन्च अ पॉपुलर मूवमेंट एंड सपोर्ट द राइट्स ऑफ लेबरर्स, जिसकी वजह से अयूब खान की गवर्नमेंट को एक बिटर ऑपोजिशन को फेस करना पड़ा। और लास्टली हम यहाँ पर एक्सटर्नल रीजन, जो अभी हमने बात की है वो तो हम सारी इंटरनल रीजंस की बात कर रहे थे, लेकिन एक एक्सटर्नल रीजन भी बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि ताशकंद डिक्लेरेशन है। बिकॉज आफ्टर 1965 वॉर पाकिस्तान साइन ताशकंद एग्रीमेंट। अब ये ताशकंद डिक्लेरेशन जो है इसके अंदर पाकिस्तानी ट्रूप्स वर विथड्रॉन फ्रॉम द ऑक्यूपाइड इंडियन टेरिटरीज आफ्टर साइनिंग दिस डिक्लेरेशन, जिसको कि कॉमन पर्सन जो है उसने पसंद नहीं किया, क्योंकि उनका ख्याल ये था कि विदाउट एनी सोल्यूशन टू द कश्मीर वी डोंट वांट टू डू दिस। और इसी चीज को बहुत ज्यादा उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर जो थे जेड भुट्टो, उन्होंने इस चीज को बहुत ज्यादा पब्लिसाइज किया और लोगों को बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर ओपनली ही बिकेम अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ अयूब खान, जिसकी वजह से देयर वाज अ प्रोटेस्ट मूवमेंट अगेंस्ट अयूब खान एंड अयूब खान व्हेन resigned from his office in 1969। सो इस तरीके से हमने अपना ये टॉपिक जो है अयूब खान का कंप्लीट कर लिया। हमने इसको बायोग्राफी ऑफ अयूब खान के साथ उनके प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस किया, फिर उनकी रिफॉर्म्स को डिस्कस किया, और फिर उसके बाद हमने उनके रीजंस यानी लॉस ऑफ पावर की रीजंस को भी डिस्कस कर लिया। अब मैं इसके जी